10वीं कक्षा के छात्रों को हिंदी कक्षा में स्वागत। बच्चों, भारत के इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य का जो यह इतिहास सृष्टि किया है, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಅಖಂಡ ಭಾರತವನ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ರಾಜವಂಶ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಮೌರ್ಯ ರಾಜವಂಶ. ಆ ವಂಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆಯಾದಂತಹ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಮಂತ್ರಿ ಚಾಣಕ್ಯರು ಈ ವಿಶಾಲ ಸಮೃದ್ಧ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾರುವೇಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಅರಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಬ್ರು ಮಾರುವೇಷದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ವೇಷವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಊರೂರು ಸುತ್ತಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಅವರ ಪ್ರಜೆಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಜನ ಚಳಿ, ಅದು ಚಳಿಗಾಲ ಆಗಿತ್ತು, ಒದೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೊದಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ಚಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕಂಡಂತ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯರು ಹೊರಗಿ ತನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಚಾಣಕ್ಯರನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ, ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಹೊದಿಕೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಆದೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಚಾಣಕ್ಯರು ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಅವರ ಒಂದು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ, ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಕಂಬಳಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ರಾಜರ ಒಂದು ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಚಾಣಕ್ಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಕಂಬಳಿ ಚಾಣಕ್ಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಕಳ್ಳರ ಗುಂಪಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಗುಂಪು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಮನೆಗೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ರಾತ್ರಿನೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಕಂಬಳಿಗಳ ರಾಶಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿನೇ ಚಾಣಕ್ಯ ಮತ್ತೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಹರಿದ ಕಂಬಳಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ, ಚಳಿಗೆ ನಡುತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ಕಳ್ಳರ ಗುಂಪಿನ ನಾಯಕ ಚಾಣಕ್ಯರನ್ನ ಎದುರಿಸಿ, ಅಯ್ಯ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಚಳಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಕಂಬಳಿಗಳ ರಾಶಿ ಇದೆ, ಒಂದು ತಗೊಂಡು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಬಾರ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದಾಗ, ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಹೊತ್ಕೊಂಡೇನೋ ಮಲಗಬಹುದು, ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ತಗೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಾಣಕ್ಯ. ಅವಾಗ ಆ ಮಾತು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಘಾತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡೋದು ಮಹಾ ಪಾಪ, ತಪ್ಪ. ಹೌದು, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡೋದ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಂತಾಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ಶಾಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು ಆ ಕಳ್ಳರ ಗುಂಪಿನ ನಾಯಕ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಳ್ಳರು ಅಂದಿನಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬದುಕನ್ನ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಯೋಚಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಮಾತು ಅನೇಕ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ. ಎಂಥ ಕಠೋರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರನ್ನು ಆರಿಸಬಹುದು. ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು 4 ಜನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ಆ ಜನತೆಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಚಾಣಕ್ಯರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಬಸಂತಿ ಸಚ್ಚಾಯಿ, ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹುಡುಗ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಪಾಠ ಬಸಂತಿ ಸಚ್ಚಾಯಿ. ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಬರೆದಂತ ಲೇಖಕರು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಭಾಕರ್. ಈ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಭಾಕರ ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ.
विष्णु प्रभाकर का जीवित काल है 1912 से 2009। ये मानव जीवन का यथार्थ चित्रण करने वाले लेखकों में विष्णु प्रभाकर जी का महत्वपूर्ण स्थान है। मानव जीवन में जो समाज में जो घटती है घटनाएं उसे यथावत लोगों को सामने रखने वाले लेखक ये विष्णु प्रभाकर है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर मीरापुर में सन 1912 ईस्वी में हुआ है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के राज्य के उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरनगर के मीरापुर में सन 1912 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। ये पंजाब में शिक्षा पाकर ये अपनी पूरा शिक्षा पंजाब राज्य में ही ये पढ़ाई करते हैं। बाद में वही 15 साल तक सरकार की नौकरी वहां लेकर काम करते हैं। सरकार की समाज की सेवा इस तरह वे करते हैं। और 1955 में ये आकाशवाणी के केंद्र दिल्ली में भी ये नाटक निर्देशक के रूप में करीब 1.5 वर्ष तक काम करते हैं विष्णु प्रभाकर। बाद में ये स्वतंत्र रूप से लेखक के रूप में स्वतंत्र लेखक के रूप में ये काम करते हैं विष्णु प्रभाकर। उनके द्वारा रचित यह पाठ नाटक एकांकी बसंत की सच्चाई है। हम अब इस बसंत की सच्चाई इस एकांकी के पहला दृश्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए इस एकांकी में आने वाले पात्रों के परिचय को हम पहले कर लेंगे। देखेंगे पात्र परिचय। बसंत एक गरीब शरणार्थी लड़का है। प्रताप बसंत का छोटा भाई है। पंडित राजकिशोर एक नेता है तथा डॉक्टर दो राह चलते व्यक्ति। ये ऐसे बसंत, प्रताप, पंडित राजकिशोर, डॉक्टर और दो राह चलते व्यक्ति का पात्र इस एकांकी में आते हैं। इस एकांकी का पहला दृश्य कहाँ घटता है देखेंगे और इसका वाचन करते हैं। देख लीजिए पाठ। पहला दृश्य स्टेज पर सुविधानुसार एक बड़े नगर के बाजार का प्रतीकात्मक दृश्य। आने जाने लेने देने का शोर, फेरी वालों की पुकार, उन्हीं के बीच में एक लड़का नंगे पाए फटे कपड़े पहने हाथ में सामान संभालते भागता हुआ आता है। उसकी आयु लगभग 12 वर्ष की है। उसका नाम बसंत है। वह पुकार रहा है, बसंत चली ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। कोई उसकी बात नहीं सुनता। सब उसे देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसी समय एक खादरधारी व्यक्ति वहां से जाते दिखाई देते हैं। वे मजदूर नेता पंडित राजकिशोर है। बसंत उन्हें देखकर उनके पीछे भागता है। बसंत साहब बटन लीजिए, देसी बटन। साहब दिया सलाई लीजिए। राजकिशोर भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ किसी और को दे दो। बसंत साहब चली लीजिए, दूध चाहिए, चाय चाहिए। राजकिशोर मुझे नहीं चाहिए। बसंत बटन। राजकिशोर नहीं। बसंत दिया सलाई। राजकिशोर नहीं। बसंत विनम्र स्वर में, साहब एक चलनी ले लीजिए, सिर्फ 2 आना कीमत। राजकिशोर पर भाई मुझे नहीं चाहिए तो कैसे ले लो। बसंत अच्छा अब 6 पैसे। राजकिशोर ओह कहा दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बसंत रुआसा साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, आपसे आशा थी साहब एक तो ले लीजिए। राजकिशोर जेब से 2 पैसे निकालते हुए, तुम तो अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए, लो ये 2 पैसे लो और जाओ। बसंत
और समझ लो मैंने एक छल्ली खरीद ली। बसंत, नहीं साहब नहीं, यह तो भीख है। मैं भीख नहीं लूंगा, आप छल्ली ले लो। राजकिशोर पर इस बात का बड़ा असर होता है। वे सास और उस बच्चे को देखते हैं और पेट टटोलते हैं, पर पैसे नहीं मिलते। राजकिशोर, भाई मेरे पास पैसे नहीं है, होते तो ले लेता, नोट है। बसंत, उदास, नोट है, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, कुछ बिका ही नहीं। राजकिशोर, तभी तो कहता था, अच्छा कल मैं ले लूंगा, मेरे घर ले आना, किशानगंज में रहता हूँ। बसंत, एकदम नहीं साहब, आज ही ले लीजिए, आप नोट मुझे दीजिए, मैं अभी बाजार में बुला लाता हूँ। राजकिशोर, भाई तुम तो। बसंत, बस मैं यहाँ आया। राजकिशोर, अच्छा लो बुला लाओ, अभी आना। बसंत, अभी आया साहब, आप यही कह रहे, अभी पलक मारते ही आया। बसंत नोट लेकर बाजार की ओर भागता है। राजकिशोर वही खड़े रहते हैं। धीरे धीरे 15-20 मिनट बीत जाते हैं। जैसे जैसे वक्त बीतती है, वे उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं। राजकिशोर, 15 मिनट हो गए, अब तक नहीं आया, कहाँ रहा गया? मुझे तो लगता है अब नहीं लौटेगा। सुचित्रा, आप तुम पढ़ो, पाठ पढ़ो। बसंत एक गरीब लड़का प्रताप बसंत का छोट भाई पंडित राजकिशोर एक नेता डॉक्टर तथा 2 लाखों चलते व्यक्ति पागल दृश्य स्टेज पर सुविधानुसार एक बड़े नगर के बाजार का प्रतिफलन दृश्य आने जाने लेने देने का शोर परिवारों की पुकार उन्हीं के बीच में एक लड़का नंगे पैर फटे कपड़े अपने हाथ में सामान संभाले भागत हुआ आता है। उसकी आयु लगभग 12 वर्ष की है। उसका नाम बसंत है। वह पुकार रहा है। अच्छा बेटी, विशाल तुम पढ़ो। बसंत साहब बटन लीजिए, देसी बटन साहब दिया सलाई लीजिए। राजकिशोर भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ किसे और को दो। बसंत साहब चलनी लीजिए, दूध चलनी चाहिए, चाय चाहिए। राजकिशोर, मुझे नहीं चाहिए। लक्ष्मी, बसंत बटन राजकिशोर नहीं, बसंत दिया सलाई। राजकिशोर नहीं बसंत विनम्र स्वर, साहब एक छलनी ले लीजिए, सिद्धो हाना कीमत है। राजकिशोर, भाई मुझे नहीं चाहिए तो पैसे ले लो। बसंत, अच्छा आप चाह पैसे। राजकिशोर, ओह कह दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बसंत, रुआसा साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं भीगा, आपसे आशा थी, साहब ये तो ले लीजिए। राजकिशोर, जेब से 2 पैसे निकलते हुए, तुम तो अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए, लो ये 2 पैसे। राजकिशोर, नहीं लोगे। बसंत जी नहीं, आप छलनी खरीद दीजिए। राजकिशोर, अच्छा एक छलनी में तुम्हें क्या बचेगा? बसंत 2 पैसे। राजकिशोर, तो बस पैसे ले लो और समझ लो मैंने एक छलनी खरीद ली। बसंत, नहीं साहब नहीं, यहाँ तो भीख है, मैं भीख नहीं लूंगा, आप छलनी ले लो। राजकिशोर, पर इस बात का बड़ा असर होता है। बैठो। आकाश, राजकिशोर भाई, मेरे पास पैसे नहीं है, होते तो ले लेता, नोट है। बसंत उदास, नोट है, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, कुछ भी का नहीं। राजकिशोर, तभी तो कहता था, अच्छा काल ले लूंगा या मेरे घर ले आना, किशनगंज में रहता
जीवन राजकिशोर अच्छा लो गुना लाओ अभी आना बसंत अभी आया साहब आप यही कहा रहे अभी पलक मरते मारते ही आया बैठ लक्ष्मी भैया नोट लेकर बाजार की और बागत है राजकिशोर वती के खड़े 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 रखते हैं धीरे धीरे 15-20 मिनट बीत जाते हैं जैसे समय बीतता है वे उत्सुक होकर बाजार की उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं राजकिशोर 15 मिनट हो गए अब तक नहीं आए कहाँ रहा गया मुझे तो लगता है अब नहीं लौटेगा बसंत की सिंचाई एकांकी का प्रथम दृश्य बाजार में होता है। यह एकांकी यहाँ से शुरू होती है। वह मंच पर कैसे व्यवस्था किया है देखिए। स्टेज पर सुविधा अनुसार एक बड़े नगर के बाजार का प्रतीकात्मक दृश्य बाजार का दृश्य दिखने वाला जैसा वे यह मंच पर प्रतीकात्मक दृश्य रचा गया है। आने जाने लेने देने का शोर, वह लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ लोग ले रहे हैं और कुछ लोग बेच रहे हैं, ऐसा वह बाजार में दिख रहा है। इसलिए शोर वह दिखाई दे रहा है। उसी के बीच में फेरी वालों की पुकार भी, कुछ फिरते हुए व्यापारी भी वहां है। वे पुकार कर सामान बेच रहे हैं। उन्हीं के बीच में एक लड़का नंगे पैर फटे कपड़े, उन लोगों के बीच में ही एक बच्चा लड़का वहां से आता है, फटे कपड़े पहने, हाथ में सामान संभाले, भागता हुआ आता है। वही के बीच में एक लड़का हाथ में सामान संभाल कर भागता हुआ आ रहा है। उसकी आयु लगभग 12 वर्ष की है। उस लड़के का आयु 12 वर्ष की है। उसका नाम बसंत है। वह पुकार रहा है। वह 12 वर्ष का जो लड़का है उसका नाम ही बसंत है। वह पुकार रहा है। क्या कहते हुए पुकार रहा है देखिए। छल्ली ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। वे बसंत उस लड़का ये सामान बेच रहा है। क्या बेच रहा है? छलनी। छलनी ये इस तरह की जो चीज वस्तु है उसे बेचता है, छलनी। और बटन, जो ये हमारे शर्ट की जो बटन है ना, ऐसे बटन बेचता है। और दिया सलाई, जो हम आग लगाने के लिए घर में इसका इस्तेमाल करते हैं, दिया सलाई। ये 3 चीजों को बेचने वाला लड़का है बसंत। इसलिए वे पुकार रहा है, छलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। कोई उसका बात नहीं सुनता है। उस लड़के के ऊपर कोई उनका बात कोई नहीं सुनते हैं। सिर्फ सब लोग उसको देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उनकी ओर देखते हैं और आगे चले जाते हैं। इसी समय ये खाद्यधारी व्यक्ति वहां से जाते दिखाई देते हैं। इन सभी जो वातावरण वहां रहता है, उसी समय में एक खाद्यधारी व्यक्ति जाते हुए दिखता है बसंत को। वे मजदूर नेता पंडित राजकिशोर है। वह व्यक्ति पंडित राजकिशोर है। वे मजदूरों के नेता थे। तो उसे बसंत उन्हें देखकर उनके पीछे भागता है। पीछे का विलोम शब्द क्या है? आगे।
दिया सलाई लीजिए। उस व्यक्ति के पीछे जाता है बसंत और साहब छल्ली ले लो, बटन लीजिए, अच्छा दिया सलाई लीजिए कर पूछते हैं तो राजकिशोर भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ किसी और को दे दो। अरे भाई मुझे कोई वस्तु नहीं चाहिए, किसी और को दे दो। बसंत साहब छल्ली लीजिए, दूध छनिए, चाय छनिए। साहब छल्ली लीजिए साहब, इससे दूध छन सकते हैं, चाय छन सकते हैं। साहब इस छल्ली लीजिए, दूध छनिए, चाय छनिए। राजकिशोर मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई चीज छल्ली नहीं चाहिए करते तो बस बटन तो ले लीजिए सर। राजकिशोर नहीं। बसंत दिया सलाई। राजकिशोर नहीं नहीं, मुझे छल्ली भी नहीं चाहिए, बटन भी नहीं, दिया सलाई भी नहीं चाहिए। बसंत विनम्र स्वर में साहब ये छल्ली ले लीजिए, सिर्फ दुआ आना। साहब ये छल्ली तो ले लीजिए, सिर्फ दुआ आना है, इसका कीमत सिर्फ दुआ आना। छल्ली का दाम कितना है? सिर्फ दुआ आना। दुआ आना में मैं आपको यह छल्ली दे देता हूँ। राजकिशोर और भाई मुझे नहीं चाहिए तो कैसे ले लूं? अरे भाई मुझे कोई सामान नहीं चाहिए, फिर भी मैं कैसे ले लूं? बसंत अच्छा आप 6 पैसे में, आप 6 पैसे में तो ले सकते हैं सर। राजकिशोर ओहो कहा दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे यार मुझे कोई चीज नहीं चाहिए। बसंत साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका है। साहब सुबह से एक सामान भी नहीं बेचा हूँ सर, मैं एक सामान भी मुझसे नहीं खरीदा गया है, बिका ही नहीं है। आप दया करके ले लीजिए, आपसे आशा थी साहब एक तो ले लीजिए। मैं तो आपसे आशा करके आपसे पीछे पीछे दौड़ कर आया, आप लेते हो कर मैं समझ लिया, लेकिन आप भी मना कर रहे सर। दया करके ले लीजिए सर। राजकिशोर जेब से 2 पैसे निकलते हुए तुम तो अच्छा तुम पैसे चाहिए लो, ये 2 पैसे लो और जाओ। वे अपने जेब टटोलते हैं और उसे 2 पैसे मिलते हैं जेब में, तो वही 2 पैसे देकर ए बसंत ले, तेरे तुझे पैसे चाहिए ना, ले लो और जाओ। राजकिशोर जेब से 2 पैसे निकालकर इसे देते हैं तो बसंत एकदम नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा। ये बसंत इनकार कर देता है, नहीं साहब मैं ऐसे पैसे नहीं लूंगा, मैं मुझसे आप कोई चीज वस्तु सामान खरीदो मैं पैसे लूंगा। राजकिशोर नहीं लोगे? बसंत जी नहीं, आप छल्ली खरीद लीजिए। नहीं साहब मैं नहीं लूंगा, आप छल्ली खरीदो मैं पैसे लूंगा। राजकिशोर अच्छा एक छल्ली में तुम्हें क्या बचेगा? बस 2 पैसे साहब, मैं एक छल्ली बेचा तो मुझे 2 पैसे मिलेगा। राजकिशोर तो बस पैसे ले लो और समझ लो मैंने एक छल्ली खरीदा है। सर अब ऐसा करो बसंत, मैं आपसे एक छल्ली खरीदा हूँ इसलिए तुम्हें 2 पैसे बचे हैं कर समझ लो और इस पैसे ले लो। बसंत नहीं साहब नहीं, यहाँ तो भीख है साहब, मैं भीख नहीं लूंगा, आप छल्ली ले लो। साहब मैं ऐसे पैसे नहीं लेता हूँ कर जो इनकार करता है तब राजकिशोर उसका मन पर इस बात का असर पड़ता है। राजकिशोर पर इस बात का बड़ा असर होता है। वे साहस उस बच्चे को देखते हैं, फिर जेब टटोलते हैं पर पैसे नहीं मिलते। इस वक्त इस बात सुनकर राजकिशोर को इस लड़के से भाई कोई सामान खरीदना ही है कर वे अपने जेब टटोलते हैं, लेकिन पैसे नहीं रहते जेब में, नोट सिर्फ नोट ही है। तो राजकिशोर भाई मेरे पास पैसे नहीं है, होते तो ले लेता, नोट है। ए भाई बसंत सुनो, मेरे पास पैसे नहीं है, सिर्फ नोट है, इसलिए मैं अभी छल्ली नहीं खरीद सकता हूँ, मैं बाद में ले लूंगा। तो बसंत नोट है, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, कुछ भीखा ही नहीं है। साहब मेरे पास भी पैसे नहीं है साहब,
वो सुबह से कुछ नहीं कहा है। राजकिशोर तभी तो कहता था, अच्छा कल ले लूंगा या मेरे घर ले आना, किशनगंज में रहता हूँ। ये काम करो, मैं कल आके तुम्हारे पास ये छलनी खरीद लेता हूँ। नहीं तो आप एक काम करो, मैं किशनगंज में रहता हूँ, वहाँ मेरा घर है, आप वहीं आ जाए तो मैं आपसे इन छलनी को खरीद ले सकता हूँ। तो राजकिशोर ऐसा कहते हुए बसंत एकदम, नहीं साहब आज ही ले लीजिए। नहीं नहीं कल नहीं, आज ही ले लेना है मुझसे। आप नोट मुझे दीजिए, मैं अभी बाजार से बुला लाता हूँ। आप आपके पास के नोट मुझे दे दीजिए, अब मैं बाजार में जाकर बड़ी दुकानों में जाकर उस नोट को बुना कर लाता हूँ। राजकिशोर से भाई तुम तो ऐसा कहता है। उसी वक्त में बसंत बस में यही आकर हाथ से उस नोट को मांग के लेकर वे बाजार की ओर दौड़ता है। राजकिशोर अच्छा लो बुना लाओ, अभी आना, लो जल्दी ले जाओ और अभी आना, जल्दी आना कर कहते हैं राजकिशोर। बसंत अभी आया साहब, मैं अभी भी आ जाता हूँ कर आप यही ठहरे, आप यहाँ रुकिए, अभी पलक मारते ही आया, अब एक क्षण में मैं इधर आ जाता हूँ। बसंत नोट लेकर बाजार की ओर भागता है। राजकिशोर वही खड़े रहते हैं। धीरे धीरे 15-20 मिनट बीत जाते हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता है तो वे उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं। देखते हुए पंडित राजकिशोर बाजार की ओर कहते हैं, 15 मिनट हो गए, अब तक नहीं आया, कहाँ रह गया, मुझे लगता है अब नहीं लौटेगा कर वे वहां से अपने घर चला जाता है। पर्दा दिखता है। इस तरह पहला दूसरा में इस घटना चलती है। इससे संबंध में कोई अन्य कोई प्रश्न पूछता हूँ। आदर्श बसंत क्या क्या बेचता बताओ। चलनी पटान दिया सर। अच्छा बढ़िया बेटा। बसंत के भाई का नाम क्या था? कुशाल। पंडित राजकिशोर क्या काम करते थे? लेकर लेते थे मजदूरों की नेता। मजदूरों के अच्छा बढ़िया बेटा। सुनीता राम, चलनी का दाम क्या था? सिर्फ 2 आना। स्वामी पंडित राजकिशोर कहाँ रहते थे? किसान बहुत अच्छे उत्तर दिए। सुचित्रा तुम बताओ, छलनी से क्या क्या कर सकते हैं? दूध चल सकते हैं, चाय चल सकते हैं। अच्छा सुकन्या, बसंत राजकिशोर से क्या विनती करता है? साहब एक चलनी ले लीजिए, सिर्फ 2 आना। सिर्फ 2 आना। बहुत अच्छा उत्तर दिया। ಸೊ 18-26 ಅಲ್ಲಿಗೆ 34 ಓ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರೆಡಿ? ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಆಗಿತ್ತು ಸರ್. इस पाठ में भाग लिए हुए 10वीं कक्षा के सभी छात्रों को धन्यवाद।